Okay. So, hello, good evening, everyone. So, today's topic is sequence in series. This topic is one of the very high weightage topic of the JEE mains. Nearly 2 questions come from this chapter. 2 questions means 8 weightage marks. Okay. So, let us understand the topic. In JEE mains last year, only sequence was there, series was deleted. Okay. So, we have to majorly deal with the sequence. The series portion is deleted this last year, 2024. This year means 2024. This year also. Okay. So, the topic that we will be doing in detail today is AP, GP, HP, some basic of the HP. Then after that, we will be understanding the arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, relation between AM, GM. Good question come from this topic also. It is important from JEE point of view and JEE advanced, mains and advanced both point of view. This is important, and the method of difference. This is also important. It is a little part of the series, but why we are doing this? Because this method of difference is being used in binomial theorem. Then next year, this year you will learn about inverse trigonometric function. There also this method of difference is used. So we will be understanding this also, and also AP, GP, and HP. So nearly one question is fixed from AP and GP. HP rarely a question comes. So one question from AP and GP comes. Another one question generally comes from the AMGM. Okay, so this is the weightage. So if a chapter is giving 2 question means it's a high weightage chapter. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो देखो, सबसे पहले हमें एपी के बारे में जानना है. तो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है टॉपिक, तो इसको मैं शॉर्ट में रिकैप करा रहा हूँ, फटाफट देख लो. एपी मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते करते अपनी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं. जैसे आपको पता ही, फर्स्ट टर्म अगर ए है मेरा, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस डी. उसके बाद वाला टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d. अगला टर्म आ जाएगा ए प्लस 3d, and so on. It will go on like this. Suppose this is your first term, this is your second term, this is your third term, this is your fourth term. तो व्हाट यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो फोर्थ टर्म है उसमें a प्लस 3d आ रहा है. अच्छा, मुझे आप लोग डायरेक्टली बता दो अगर आपको आइडिया है इस बारे में. तो nth टर्म क्या आएगा इसका? व्हाट इज द nth टर्म? एनीवन? फास्ट. nth टर्म ऑफ द AP. A plus n minus 1d. Yeah, if you know, you can directly answer so that we can concentrate on the important topic, right? So yes, correct. Nth term of the AP is a plus n minus 1 into d. So see, third term a plus 2d, fourth term a plus 3d, and similarly nth term will be a plus n minus 1 into d. And each term is getting increased by the common difference d. D is called the common difference. This common difference can be positive, negative, 0, and anything. Okay. Now next important is the sum of the n terms. So next important formula comes for the sum of n term. If I want to do the sum of n term, 2 formula comes: n by 2, 2a plus n minus 1 into d. One of the formula is this, and this can also be written as n by 2 a plus l, where this l is again the nth term or last term. This can be written as nth term or last term. Any doubt? Tell me. Everyone clear, right? This is the basic. You have also learned in your class 10th also, right? Okay. So this is about the AP. The properties are very important in this AP. Like if you add 2 terms to AP, the resultant sequence is also an AP. So for the AP, the general term is a plus n minus 1d, and the sum of the n terms is this. Okay. Some basic question come like this also. Basic calculation. See, if the 9th term of the AP is 35, 19th term is 75, we need to find the 20th term. Okay. So again, direct put the value and you can get the answer. So 9th term, tell me what is the formula for 9th term? How can I write the 9th term? And how can I write the 19th term? A plus 8d. Very good. A plus 8d is equals to 35. This is your equation 1. And a plus 18d. 18d equal to 75. Very good. Now 2 equation, 2 variable. From here, I can get the value of a, I can get the value of d. And if I have a and d, I can find anything, right? So this is one of the basic questions. You can try. I will provide the notes. You can try this. Okay. Solution is also given. One good question that came in last year also. J means 2020. The direct question from AP also, direct questions are coming in your exam. So do this topic very properly. See here, what is given in the question? Read. Now you can try this question. It's a good question. Just tell me, मुझे आप यहाँ पे ये बताओ कि आप इसमें क्या तरीका अपनाओगे इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए. यहाँ पे बोला गया क्या कि A1, A2, A3 up till AN, ये सब किस में है? AP में है. A1, A2, A3 up till AN ये AP में है. और एक रिलेशन हमें क्या दिया गया है? A5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A7, A11 इक्वल टू 18. ये 2 रिलेशन हमको दिए हुए हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के मुझे बताओ, आपके दिमाग में पहला स्टेप क्या क्लिक कर रहा है कि ये जो रूट प्लस रूट दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से टर्म्स दी हुई है, हम क्या करना चाहें, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको? एनीवन? जो भी दिमाग में आ रहा हो बता दो कि यहाँ पे ये जो चीज गिवन है 1/√8n
प्लस रूट ए 11। हाँ, अनम्यूट करके बताओ चैट में, अगर ना दे पाओ तो, या ओके। एक बच्चे ने बोला रैशनलाइज कर दो, वेरी गुड, सही है। जब भी हमें रूट प्लस रूट वाला टर्म दिखता है, हम एक ही काम करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर मेरे पास a10 प्लस रूट a11 है, तो रैशनलाइज करने के लिए रूट a10 माइनस रूट a11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट a10 माइनस a11। सो जब इसको हम कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट a10 माइनस रूट a11। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्या मुझे ये बता सकते हैं ये a10 माइनस a11 है क्या? एनीवन? इसका मतलब क्या है? अगर a1 a2 a3 अप टिल ये सब AP में है, a10 माइनस a11 का मतलब क्या है? जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो यार, तो ही मजा आएगा क्लास में, अदरवाइज तो फिर मुझे सारा कॉमन डिफरेंस। हाँ हाँ, बाकी लोग, आदित्य, युवराज, लोकोजीत, आर यू गेटिंग दिस? आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आप अनम्यूट करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? आप क्लास में सब लोग अनम्यूट करके बता सकते हो, वैसे अपन बच्चे बहुत कम है, तो आप अनम्यूट करके डिस्कशन करो, ठीक है? ताकि हम पढ़ा। हाँ, तो यहाँ पे सही बताया, बहुत बढ़िया। a10 माइनस a11 दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ये प्लस डी होगा माइनस डी होगा? माइनस माइनस डी, वेरी गुड। द a10 माइनस a11 इज माइनस डी, वेरी नाइस। सो सिमिलरली फॉर एवरी टर्म, ईच टर्म हम अगर रैशनलाइज करेंगे तो हर टर्म में डिनोमिनेटर मेरा माइनस डी बनेगा। हर टर्म में डिनोमिनेटर क्या बनेगा? माइनस डी। तो माइनस डी अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस डी को अगर हम कॉमन ले ले पूरे ब्रैकेट में से, तो मेरे पास टर्म्स क्या बनेगी? तो पहली वाली ब्रैकेट बनेगा क्या, रैशनलाइज करने के बाद a10 माइनस दिस, ये मेरा पहला ब्रैकेट बनेगा। फिर प्लस दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा? रूट ऑफ a11 माइनस रूट ऑफ a12, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं। और फिर तीसरा ब्रैकेट क्या बनेगा? रूट ऑफ 11 12 के बाद क्या आ जाएगा? 12 13, राइट? इस तरह से जाता जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? रूट ऑफ a17 माइनस रूट ऑफ a18। क्या ये सही लिखा मैंने? क्या कोई मिस्टेक तो नहीं करी? जल्दी बताओ, नो क्या सर। करेक्ट है? अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या? बताओ। हाँ यस सर। हाँ देखो, ये यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, तो इसी तरह से आगे वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी और इसके जस्ट पहले वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी। तो पूरे टर्म्स में मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म बचेगी। देखो, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, तो हमें क्वेश्चन को देखते से पहले क्लिक कर जाता है। जब भी रूट प्लस रूट हमारे पास आता है, हम जनरली एक ही स्टेप अपनाते हैं, क्या? रैशनलाइज करते हैं। जैसे रैशनलाइज किया, पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर कहां तक आ गया? फाइनली मेरे पास क्या दिख रहा है? माइनस 12 बाई डी, और ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास? दो टर्म, दैट इज रूट ऑफ a10 माइनस रूट ऑफ a18। फर्स्ट टर्म बचा और लास्ट टर्म बचा, बाकी सारी टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब मुझे इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब जो मेरे पास जो गिवन डेटा है, क्या गिवन डेटा है? a5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a7 और a11 इक्वल टू, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। यहाँ से मैं फर्स्ट a और d निकाल लूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लूंगा। क्या आगे आप सॉल्व कर सकते हो? अल्टीमेटली यहाँ से मुझे अब क्या निकालना है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, इन दोनों से मुझे a और d पता करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनेंगे, वहां से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। लेकिन बस ये एक मेजर स्टेप था आपका, रैशनलाइजेशन। बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आया ना? बोलो, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। हेलो? सर वो a10 माइनस a18 कैसे हुआ? हाँ हाँ, a10 माइनस a18 कैसे हुआ? ठीक है, देखो ये फर्स्ट टर्म मेरा ये था, रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर में क्या बनेगा? रूट ऑफ, देखो नीचे प्लस है तो हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ a10 माइनस रूट ऑफ a11। फिर यहाँ पे रैशनलाइज करूंगा तो रूट ऑफ a11 माइनस रूट ऑफ a12। इस तरह से आगे चीजें जाती है, कि यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो रूट ऑफ a17 माइनस रूट ऑफ a18 बनेगा। और डिनोमिनेटर, ये सारा डिनोमिनेटर तो मेरा कॉमन क्या आ जाएगा? ये सब की वैल्यू माइनस डी के बराबर आ गई थी, तो सबका एलसीएम होकर माइनस डी आ जाएगा। अब जब यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एक चीज हमें क्या दिख रही है कि ये वाली माइनस इसके साथ, मतलब एलसीएम आ जाएगा, सब ऊपर वाले सब ऐड होंगे, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म इसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगा, और इसके जस्ट पहले वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा। तो मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। आई बात समझ में? हाँ यस सर। हाँ सर समझ गया। आ गया, वेरी गुड। ओके, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, आप घर पे जाके इसको प्रॉपर्ली ट्राई करना, नोट्स में भी भेज दूंगा। देखो, हमें आज प्रैक्टिस करना, हमको कोशिश करना कि मैक्सिमम आज के लेक्चर में मैक्सिमम टॉपिक फिनिश कर सके। तो पूरा डिटेल में सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है?
11th में अच्छे से किया हुआ, तो अपना टारगेट रहेगा कि अगले 1 घंटे में हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को समझ लें। बाकी नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा, तो आप घर पे रिट्राई इसको कर सकते हैं। अभी बस कॉन्सेप्ट को समझे और स्टार्टिंग स्टेप को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखो एक और क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा 2021 में, तो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जेईई मेंस के जो अच्छे अच्छे आए इस चैप्टर से टॉपिक वाइज, वो मैंने यहाँ पे दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बताओ क्या करेंगे। SN denote the sum of n terms of an AP, right? SN denote the sum of n terms of the AP, और हमें डेटा में क्या क्या गिवन है, S10 की वैल्यू गिवन है 530, S5 की वैल्यू गिवन है 140, और एक लास्ट रिलेशन जो पूछा गया कि X20 माइनस S6 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, SN का मतलब क्या होता है, SN का सम क्या मतलब समझते हैं? Sum of the n terms. या सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP, वेरी गुड, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP, और ये AP है तो सम ऑफ द n टर्म्स, ठीक है। तो S10 का मतलब क्या है, शुरू की 10 टर्म का सम। S5 का मतलब क्या है, शुरू की 5 टर्म का सम। ये दो डेटा गिवन है और ये पूछा गया, क्या तरीका अपनाएंगे। देखो अननोन तो कितने हैं मेरे पास, 3 अननोन रहते हैं, सॉरी हाँ, अननोन क्या कह रहे थे, Yes, 3। sir. फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे दोनों में गिवन है, अननोन मेरे पास 2 बच्चे A और D, तो क्या इन दो इक्वेशन से A और D आ सकता है, बोलो। हाँ, yes, sir. है ना, देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा गेन। यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप मुझे बता दो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा। फर्स्ट रिलेशन आप बता दो, चलो इसको पढ़ के यहाँ से क्या इक्वेशन लिखूं नेक्स्ट। n/2. n/2, n क्या है यहाँ पे, 10/2, वेरी गुड। फर्स्ट हमको a मान लेते हैं, 2a प्लस n-1 दैट इज 9d इक्वल टू 530। क्या ये सही लिखा है, Yes, sir. राइट एवरीवन? आपको समझ में तो आ रहा है ना, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 106। So this is your equation number 1, and similarly यहाँ से भी from here also you will get equation number 2 in the relation between A and D। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, A निकाल लेंगे और D निकाल लेंगे। जैसे ही मेरे पास A और D आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके आंसर आ जाएगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है, मतलब इसमें कोई दिक्कत आ रही किसी को, एनीवन? नो सर। क्लियर है? तो जेई डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने जो क्लास 10th में जो एपी पढ़ा था उसके अलग कुछ पूछेगा। यहाँ सिंपल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत प्रॉपर्ली करें, कि इजी क्वेश्चन को पहले पिकअप करो। जनरली इस चैप्टर से तो काफी इजी क्वेश्चन आते, मतलब इजी यूं नहीं बोलूंगा हमेशा इजी आते हैं, इजी मीडियम लेवल के आते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो स्कोरिंग चैप्टर है, और फिर सबसे हाई वेटेज भी है, दो क्वेश्चन हर साल दे रहा, ठीक है। चलो और वैरायटी देखते थे, यहाँ पे 2 बेसिक वैरायटी हमने देख ली है, इसका सॉल्यूशन एक बार आप घर पे ट्राई करके मैच कर लेना। नेक्स्ट वैरायटी सी, ये भी क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता था क्लास 10th में, अगर ध्यान हो तो। क्या दिया गया, एक बार ध्यान से पढ़ो। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 2 n टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस, देन रेशियो ऑफ द 17 टर्म। आपने अगर ध्यान हो ये क्वेश्चन अगर देखा तो क्या गिवन है, सबसे पहले रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी। यहाँ पे आपको 2 एपी गिवन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2 अलग अलग एपी है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। उनका रेशियो हमें गिवन है, ये पूछा गया 17 टर्म का रेशियो क्या होगा। तेरी AP1 एंड AP2, 2 तरह की एपी है हमें, ठीक है। तो मान लो AP1 में फर्स्ट टर्म है A1, कॉमन डिफरेंस है D1, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म A2 मान लेते, कॉमन डिफरेंस D2 मान लेते। तो जो गिवन डेटा है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, दोनों की n टर्म का रेशियो मुझे दिया हुआ है, तो अगर मैं फर्स्ट वाली एपी लिखूं, फर्स्ट वाली एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2a n/2 2a प्लस n-1 into d। ये फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP1, और सेकंड n टर्म्स ऑफ द सेकंड एपी के अगर मैं n टर्म्स की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, n/2 2a2 प्लस n-1 into d2, और ये रेशियो हमें गिवन है 5n + 3 डिवाइडेड बाय 3n + 4। यहाँ से क्लियरली एक चीज तो कैंसिल हो रही है, n/2 n/2। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अब मेरे पास ये एक ही इक्वेशन है, इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं है, मतलब एक इक्वेशन है और अननोन कितने, 4 अननोन है। अब एक इक्वेशन से मैं 4 अननोन कौन कौन, A1 भी नहीं पता, D1 भी नहीं पता, A2 भी नहीं पता और D2 भी नहीं पता, ये चारों के चारों चीज मुझे नहीं पता, और इक्वेशन रिलेशन सिर्फ एक ही तरह का मुझे दिया हो। तब मुझे ये बताओ कैसे करके मैं इन चारों को कैसे निकालेंगे, क्या तरीका अपना है। और जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमें, 17 टर्म का रेशियो, तो 17 टर्म का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, A1 + 16d और A2 + 16d, ये मुझे निकालना है। हाँ एनीवन, अब मुझे आप लोग में से कोई बताओ अगला स्टेप क्या रहेगा, ये इक्वेशन 1 को हम कैसे यूटिलाइज करें। यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन आया है वो ये आया है, 2a1 + n-1 into d1 डिवाइडेड बाय 2a2 + n-1 into d2 इक्वल टू दिस। यहाँ से a1 d1 a1 a2 d1 d2 कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ, क्या तरीका अपना है, जो भी मन में आ रहा बता दो।
हाँ, आदित्य, साहिल, युवराज, रौनक, लोकोजीत, गुरमंत, थोड़ा सोचो क्या तरीका अपनाएंगे। इक्वेशन एक ही है और अननोन 4 है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या तरीका होता है? आंसर नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली। देखो आंसर आप सॉल्व करने, देखो ये क्लास ऐसा नहीं कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना, ठीक है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, रौनक एंड जो भी है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर नहीं बताना। मैं आपको ये शीट शेयर कर दूंगा, आप आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट यही है कि बस आप मुझे स्टेप्स बताओ, तरीका बताओ और हम आगे बढ़े। कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ तरीके दोनों, बिकॉज वी हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आप मुझे ये तरीका बताओ, अगली स्टेप क्या रहेगी, कैसे मैं A1 D1 A2 D2 निकालूं, या फिर और कोई तरीका हो जिससे डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाए। ये जो रिलेशन है A1 + 16 D1 अगर मुझे क्रिएट करना है तो n की वैल्यू ऐसे कुछ रख सकते हैं कि जहां से ये क्रिएट हो जाए। अगर देखो आप अगर ऐसा सोचते हो n की वैल्यू अगर आपने 17 रख दी तो 17 से काम नहीं होगा, 16 D1 बनेगा। और क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू में क्या रखूं ताकि ये क्रिएट हो जाए, A1 + 16 D1 अपॉन A2 + 16 D2। सोच के देखो थोड़ा सा। n की ऐसी एक तरीका तो ये कि n की वैल्यू से क्या रखें डायरेक्टली ताकि ये जो गिवन डेटा मुझे पूछा गया ये क्रिएट हो जाए। बताओ जल्दी, जितना जल्दी बताओगे आगे बढ़ेंगे। n की वैल्यू 33 रखें, ओके, वेरी गुड। 2 कॉमन लेना पड़ेगा, वेरी गुड रौनक। रौनक ने बोला है कि A1 + 16 D1 चाहिए, तो यहाँ पे A1 का कोफिशिएंट 1 है, A2 का भी कोफिशिएंट कितना है 1, तो मुझे इसको 1 बनाना। तो 1 बनाने के लिए 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, और 2 को कॉमन लेने के बाद 16 क्रिएट होना चाहिए। कितना क्रिएट होना चाहिए, 16। तो 16 क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 32 क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, बेसिकली अगर ये वैल्यू 32 बन गई और ये वैल्यू भी 32 बन गई तो मैं 2 कॉमन लेके ये चीज क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको 32 बनाने के लिए हमें n को क्या रखना पड़ेगा, n को हम रख देंगे 33, वेरी गुड। n को हम क्या रख देंगे 33, तो n को अगर आप 33 रख दोगे तो आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो इसको आप एक बार ट्राई कर लेना। अगेन ये एक और क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको शांति से ट्राई करना। थोड़ा सा टाइम लेगा, 4 से 5 मिनट लेगा, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। जेई एडवांस में आया था लेकिन अच्छा क्वेश्चन। पढ़ना चाहो, करना चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, या फिर अभी करना है या फिर घर पे ट्राई करोगे, बताओ। अरे आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, अनम्यूट करके तो बोलना पड़ेगा। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, अदरवाइज तो फिर क्या है ना, फिर मैं सिर्फ बोल बोल के आपको फॉर्मूला बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, क्लास एंड हो जाएगी। लेकिन आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। ठीक है, हाँ या ना जवाब देना पड़ेगा, या फिर साहिल आप अगर कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज शायद आ नहीं रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है तो आप जवाब दो। आप चाहो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, सर घर पे कर लूंगा। घर पे ट्राई करोगे एक बार, ठीक है, ओके। बाकी लोग, ओके। क्वेश्चन अच्छा है तो मैं चाहता हूँ आप इसको टाइम दें, और क्वेश्चन टफ नहीं, एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन, जेई एडवांस में जरूर आया था लेकिन क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। इसको आराम से ट्राई करना, 4 से 5 मिनट ट्राई करना, सॉल्यूशन इसमें गिवन है तो एक बार इसको प्रॉपर्ली ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने बता दिया। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी आता है, कभी कभी एंड से टर्म पूछते हैं, तो या तो फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन जनरली फॉर्मूला हम भूल जाते हैं। तरीका अगर इसका याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। 16 टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपके हिसाब से इसमें क्या तरीका अपना है। जैसे आगे से 16 टर्म पूछते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला A + 15D, ए पता है डी पता है, A + 15D का फॉर्मूला अप्लाई करता है, आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में पीछे से 16 टर्म पूछा है, तो पीछे से 16 टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे, एनीवन, कोई तरीका आपको ध्यान हो, फिर मुझे तरीका बताओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तरीके डिस्कस करना, पूरा सॉल्व मत करो इसको, सिर्फ तरीका बताओ और आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन घर पे करना कॉमन आराम से। डिफरेंस नेगेटिव में ले तो। वेरी गुड, एपी रिवर्स कर दो, सही है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। एपी रिवर्स कर दो या कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में ले लो, बहुत बढ़िया, दोनों ही सही तरीका था। तो कभी भी अगर पीछे से एंड से पूछा है 16 टर्म तो आप एपी को इस तरह से लिख दो, 86 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओगे 2 6 10,
मतलब आपने एपी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब यहां से आप पता कर लो 16th टर्म क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट अपना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब इस एपी के हिसाब से मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 86, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस कर दो, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। फिर 10 यहाँ पे क्या आएगा 6 पीछे, हाँ 10 6 2, जब भी मैंने कोई सोचा क्या गड़बड़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 6 2, तो इन दोनों को कोई भी दो टर्म को आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर देंगे, 6 - 10 कितना हो जाएगा, -4। तो ए पता है, डी पता है, आपको क्या पूछा गया था 16 टर्म, 16 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a + 15d, वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी बस ये छोटा सा कंसेप्ट था, कभी भी अगर एंड से कुछ पूछते हैं तो आप एपी को रिवर्स करके लिख देना, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन जल्दी से बताओ, फिर यहाँ पे हिंट दे दी इन लोगों ने पहले। एसएन दिया हुआ है और पूछा है एनएट टर्म क्या होगा। तो एसएन से एनएट टर्म निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, दो तीन तरीके हैं एक्चुअली, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप एसएन में से शुरू की एन टर्म में से शुरू की n-1 टर्म माइनस कर दो। देखो मान लो S1 S2 S3 अप टिल n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स में से शुरू की n-1 टर्म माइनस कर दो। सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, Sn, A1 से लेके A2 से लेके An तक का सम। Sn-1 क्या हो जाएगा, A1 से लेके A2 से लेके कहां तक, n-1 तक, इसके पहले वाले तक। तो इन दोनों का अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो सब्सट्रैक्शन में ये सारी टर्म हट जाएगी, फिर मेरे पास बचेगा क्या, लास्ट टर्म बचेगा। तो आपको कभी भी nth टर्म निकालना तो एक तरीका डायरेक्ट क्या है, Sn - Sn-1। Sn आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, Sn की वैल्यू कितनी गिवन है 5n² + 3n। Sn-1 क्या होगा, एनीवन, Sn-1 कैसे निकालेंगे, ये टर्म क्या करें, Sn पता है, Sn-1 कैसे निकालोगे, 5n - 1 का होल स्क्वायर + 3 × n-1। वेरी गुड वेरी गुड। n की जगह सिर्फ रिप्लेस क्या कर देंगे, n-1, n की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे, n-1, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एक और ये है, देखो ये सबसे आसान तरीका, फटाफट काम हो जाएगा, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट अप पर करके निकालो। तो जैसे आप a और d निकाल लो, अगर a और d आ जाएगा तो मैं कुछ भी पूछेंगे आंसर आ जाएगा। तो a और d निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं n को 1 पुट अप करता हूँ, n को 1 पुट अप करेंगे मतलब S1 आ जाएगा, S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 + 3 दैट इज 8। अब मुझे ये बता सकते हैं S1 का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, S1 क्या डिनोट करेगा, फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म, वेरी गुड। जैसे Sn क्या डिनोट करता है, सम ऑफ n टर्म, शुरू की n टर्म का सम। तो S1 क्या डिनोट करेगा, एक ही टर्म है, तो शुरू की फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आ जाएगी 8। इसी तरह से आप n को अगली बार क्या पुट अप कर दो, 2 पुट अप कर दो। n को जैसे ही 2 पुट अप करोगे आपके पास S2 आ जाएगा। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 5 20 + 6 26, ओके। तो S2 मान लो 26, S2 क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सो A1 + A2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इक्वल टू 26। आप यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना a, और सेकंड टाइम क्या हो जाएगा a + d = 26। तो यहाँ से आपका d भी आ जाएगा। तो a पता चल गया, d पता चल गया, कुछ भी पूछा आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आपने देखा भी होगा, जेई ने अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते तो पिछले 2-3 सालों से इस कॉन्सेप्ट पे हर साल एक क्वेश्चन पूछ ही रहे, कॉमन टर्म्स ऑफ द 2 AP, कॉमन टर्म्स ऑफ द 2 AP। इस पे मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो कॉमन टर्म में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको मान लो 2 AP दे दे, AP1 और AP2, ठीक है, वो पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ। तो बेसिक कंसेप्ट तो क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो फर्स्ट वाली एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है, तो दोनों की जो दो कॉमन टर्म्स की जो एपी बनेगी, कॉमन टर्म्स वाली जो एपी बनेगी, उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा LCM ऑफ D1 एंड D2। LCM ऑफ D1 एंड D2 मतलब D1 और D2 का आप LCM लेंगे तो उससे आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो ट्राई करो ये। एक क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, 2 एपी गिवन है। पहली एपी है 3 6 9 12 अप टू 78 टर्म्स। और सेकेंड एपी क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, 5 9 13 17 अप टू 59 टर्म्स। ये 2 एपी गिवन है। पूछा है सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, तो हमें पहले तो ये पता करना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होगी, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द टर्म क्या होगा, तभी उनका क्या निकाल सकते, सम निकाल सकते। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट कॉमन टर्म के कॉमन टर्म की जो सीरीज बनेगी,
कॉमन टर्म्स की जो सीरीज बनेगी उसमें फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, जल्दी बताओ, दिख रहा है? 9. 9 दिख रहा है सबको? फर्स्ट कॉमन टर्म कितना आ रहा है? 9। तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो 9 आ गया। अगला कोई ना कोई कॉमन टर्म आएगा, तो फर्स्ट टर्म तो मुझे कॉमन टर्म्स की जो सीरीज होगी उसमें फर्स्ट टर्म क्या पता चल गया? 9। फर्स्ट टर्म कितना है? 9। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज इज 9। अब मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? LCM of 3 and 4. वेरी गुड, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, दोनों सीरीज का क्या निकाल लो? एलसीएम। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने। तो ये जो पहली सीरीज है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। जो दूसरी सीरीज है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। यहाँ पे एलसीएम ऑफ आ जाएगा 3 एंड 4। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज व्हाट? 12। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब मुझे कुछ भी पता करने के लिए एन पता करना है, ठीक है? सम ऑफ द कॉमन टर्म्स पता करना है, तो क्या पता करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। अगर एन पता चल गया तो मेरा पूरा काम हो जाएगा, फिर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे काम हो जाएगा। तो ए तो पता करना आसान है, डायरेक्ट देख लो कि पहले पहला कॉमन टर्म कौन सा आ रहा है, सीरीज बना लो, देख लो पहला टर्म कौन सा कॉमन आ रहा है। डी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि एलसीएम ऑफ D1 D2। अब मेन दिमाग लगाना है एन निकालने में। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैसे निकालें बताओ, क्या तरीका अपनाओगे नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालने के? क्या तरीका अपना है ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैसे आएगा? लास्ट कॉमन टर्म कहां तक जाएगी, अगर ये पता चल जाए तो भी एन आ जाएगा, या फिर और कोई तरीका आपको ध्यान हो तो? जो कॉमन टर्म्स की सीरीज बनेगी उसका फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, नहीं पता ओके कोई बात नहीं, चलो। तो इसको सीखते हैं अपन अच्छे से देखना। कभी भी देखो ये नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पता करना है मुझे, मेरा टारगेट क्या है? एन पता करना है। तो एन पता करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले तो आप है ना दोनों सीरीज की लास्ट टर्म पता कर लो। देखो ये सबसे हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले लास्ट टर्म पता कर लो। एन पता करने के लिए क्या करो? लास्ट टर्म। एक नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आपको तो पहली जो सीरीज थी, अब मुझे क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए वह सीरीज क्या थी? 3, 6, 9 अप टिल 78। तो मुझे बता 78 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 78 टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 77D है ना, ये इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 प्लस 77, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 78। तो एक बार करके बताना कितना आ जाएगा ये? 24 टू 234, चेक कर लेना एक बार। तो इसका लास्ट टर्म कितना आ गया? 234। तो एन निकालने के लिए स्टेप 1 क्या है? फाइंड लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ 2AP। तो इसका लास्ट टर्म अपना कितना आ गया था? एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताते हैं। 234। अब सेकंड सीरीज देखते हैं। अब सेकंड सीरीज का लास्ट टर्म मुझे, जिसको किसी को भी अगर कोई भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लेना। एनीवन, किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो किसी स्टेप में तो प्लीज पूछ लेना। यहाँ पे पहला टर्म कितना है? 5, 9, 13, 17। अब यहाँ पे मुझे कहां तक जा रही? 59 टर्म तक। तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? A प्लस 58D। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 5। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो इन दोनों का अगर मैं ऐड करके निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 32, सो आई थिंक 232। तो 232 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 237। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताते रहना। तो इसका लास्ट टर्म आ गया। सेकंड जो सीरीज थी, सेकंड सीरीज क्या थी? 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन अप टिल 237। 237। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन, क्लियर है सबको यहाँ तक? स्टेप 1 हमने क्या अपनाया? सबसे Yes. पहले दोनों सीरीज का लास्ट टर्म अपनाएगा। हाँ, तो सेकंड स्टेप, इसको ये तरीका अपना लेना, कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ही। मैक्सिमम चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन आने के। अब आपको क्या करना है? आपकी जो कॉमन टर्म वाली सीरीज होगी, आपकी जो कॉमन टर्म वाली सीरीज होगी उसका जो nth टर्म होगा वो ऑफकोर्स इन दोनों से जो सबसे छोटा टर्म है उससे छोटा होगा। इसमें से स्मॉलर वन कौन सा है? ये बताओ, लास्ट टर्म छोटा वाला कौन सा है? इन दोनों में स्मॉलर वन कौन सा है? लास्ट 234। वेरी गुड। तो मेरा जो भी लास्ट कॉमन टर्म आएगा, जैसे फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है? 9। अगला कोई ना कोई कॉमन टर्म होगा, फिर अगला कोई ना कोई कॉमन टर्म होगा। जो लास्ट कॉमन टर्म होगा हो सकता है वो 234 हो या फिर 234 से क्या होगा? कम होगा। तो लास्ट कॉमन टर्म हमेशा इस 234 से क्या होगा? या तो बराबर होगा या तो कम होगा। बस अगली स्टेप में ये इनइक्वालिटी अप्लाई कर देना। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द लास्ट कॉमन टर्म शुड बी लेस देन और इक्वल टू 234। ये कॉमन टर्म्स की बात कर रहा हूँ।
जो कॉमन टर्म्स होंगे उसमें लास्ट कॉमन टर्म्स क्या होगा, 234 से कम होगा। अब कॉमन टर्म में मुझे क्या क्या पता था, ए पता है, डी पता है, इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप कर दूं, ए कितना था 9 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस था 12 लेस देन इक्वल टू 234। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार n में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल इज लेस देन और इक्वल टू 234 माइनस 9। तो ये कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू, ये सब्सट्रैक्ट करना कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 225, ठीक है। 12 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, लेस देन इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 12, तो n लेस देन इक्वल टू, ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली बताना, डेसिमल में कितना आएगा, जल्दी से डिवाइड करो, और n उधर प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। 18.75। 18.75, थैंक यू। तो 18.75 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19.75, जो यहीं से पता चल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होगी लेस देन और इक्वल टू 19.7, और आपको पता है कि जब अपन जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एस एन और ए एन, यहाँ पे जो एन होता है वो एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, राइट, 1 2 3 एंड सो ऑन। कभी भी एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, सम ऑफ एन टर्म्स या एन एट टर्म, ये हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ये हमें बेसिक पता ही है। तो 19.75 से कम सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 19. सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 19। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली क्या पता चल गया, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और यही जनरली यही क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो यही पूछते हैं, 2 एपी दे देंगे, पूछेंगे नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ, तो आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना, लास्ट टर्म पता कर लेना, लास्ट टर्म में जो सबसे छोटी वाली टर्म है उससे उसको लेस कर देना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, और जो भी आंसर आएगा उसको इंटीजर पार्ट ले लेना, जो भी आंसर आएगा उसको क्या ले लेना, इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा इसका, 19। तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ जाएगी, 19। अब आपको ए पता है, डी पता है, आपने एन पता कर लिया, ए पता है, डी पता है, एन पता कर लिया, सम ऑफ एन टर्म्स निकल जाएगी। बताओ इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, एनीवन। इस टाइप का क्वेश्चन काफी अच्छा है, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछो। क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको और घर पे सॉल्व करना, देखो ये 19 ही आया था, सेम तरीके से सॉल्व किया गया। की पॉइंट फॉर द एपी, एपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी, जिसको सॉल्व करने, जिसको अप्लाई करने पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, द कॉमन टर्म्स ऑफ द टू एपी, जैसे मान लो अगर टू एपी का कॉमन टर्म्स हमने ऑलरेडी पता कर लिया है। अगर दूसरी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर A1 A2 A3 अगर ये एपी में है, तो अगर मैं इन सारी टर्म्स में k मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, या k से किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दो, तो अगर आप एपी की हर टर्म में किसी कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो या ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो अभी भी किस में रहेगी, एपी में ही रहेगी। रिजल्टिंग सीक्वेंस अभी भी किस में रहेगी, एपी में, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो पहले था, नया जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा k टाइम्स हो जाएगा, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देख लेना सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो रहा है, ऐड करने पे क्या हो रहा है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि वो सेम रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, एपी में जनरली आप देखोगे शुरू की जो टर्म है, लास्ट की टर्म, और जैसे जैसे पीछे जाते जाते हैं उनका सम हमेशा सेम आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई एपी मान लो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मान लो 50 तक टर्म है, 50 के पहले क्या क्या आ जाएगा, 49 48 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A1 है, लास्ट टर्म A50 है, इनका जो सम होगा A1 प्लस A50, ठीक है। और जैसे फिर ये है आगे से दूसरी टर्म, पीछे से दूसरी टर्म, A2 प्लस A49, फिर आगे से तीसरी टर्म, पीछे से तीसरी टर्म, A3 प्लस A48, द सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ये सब की सब क्या होती है, सेम होती है। तो कभी कभी इसको भी सॉल्व करते हुए क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जैसे जैसे पीछे आते जाओगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम अगर आप निकालोगे, मान लो कोई वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू शुरू किससे दूसरी टर्म, पीछे से दूसरी टर्म के बराबर होगी, शुरू से तीसरी टर्म वो पीछे से तीसरी टर्म की क्या होगी, बराबर। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी काफी काम आता है कभी कभी एपी को कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो ये ध्यान रखना। और ये अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अगर एपी में कुछ टर्म्स अज्यूम करनी, तो जनरली आप ए या डी अज्यूम करते हो, लेकिन कभी कभी इस तरह से टर्म अज्यूम करने पे क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो कभी भी आपको पूछे अज्यूम 3 टर्म्स इन एपी, अगर आपको 3 टर्म्स एपी में लेना है
इसका तरीका क्या होता है एक्चुअली, सेंट्रल टर्म को आप ए मान लो, सेंट्रल टर्म को क्या मान लो ए, अब आगे डी ऐड कर दो और पीछे डी सब्सट्रैक्ट कर दो। तो कभी भी अगर 3 टर्म एपी में अज्यूम करनी है तो आप इस तरह से अज्यूम करोगे, ये भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आपका हो जाएगा सेकंड टर्म, ये आपका हो जाएगा थर्ड टर्म। इसमें फायदा क्या होगा, कभी कभी क्या बोलते हैं, सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। आप क्या करोगे, जैसे इनको ऐड करोगे आपका डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन 3 में आएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 3 टर्म्स अगर एपी में लेना तो इस तरह से लेना। अगेन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब भी लेना है तो सेंट्रल टर्म हमेशा क्या होगा, ए होगा। अगर मान लो 5 टर्म्स लेना है तो सेम तरीका, वापस सेंट्रल टर्म को ए मान लोगे, आगे साइड डी ऐड करोगे, फिर पीछे साइड डी सब्सट्रैक्ट करोगे, 3 टर्म हो गई। फिर आगे साइड वापस डी ऐड करोगे, पीछे साइड डी क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। तो 5 टर्म अगर एपी में लेनी है तो इस तरह से लेना है, ठीक है। तो ये आपका अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका वापस फायदा क्या होगा, जैसे आप इसको ऐड करोगे सारा डी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिलेशन पूरा ए में आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको, आया ना? यस सर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो वापस पूछते रहना। इसी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि the digits of a positive integer having 3 digit number are in AP, their sum is 15 and the number obtained by reversing the digit is 594 less than the digit, ठीक है। अब देखो कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है जिसकी तीनों डिजिट क्या है, एपी में, जिसकी तीनों डिजिट क्या है, एपी में। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं तो 3 6 9, एक 3 डिजिट नंबर है, इसकी तीनों टर्म्स किस में, एपी में, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। एक और एग्जांपल अगर लेना है तो क्या ले सकते हैं, जैसे ले लिया मान लो 1 5 9, अगेन देखो ये भी एपी में, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स किस में दिख रही है, एपी में दिख रही है, कॉमन डिफरेंस आपको भी दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो बोला गया क्वेश्चन में कि 3 टर्म्स एपी में ली गई, मतलब सॉरी एक नंबर है जो एपी में, जिसकी तीनों डिजिट किसमें, एपी में, और उनका सम आपको दिया हुआ है 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, तीन टर्म्स और सम, तो अपन कब वही तरीका अपनाएंगे जो अभी मैंने बोला था, एपी में अगर 3 टर्म लेना है तो 3 टर्म्स इन द एपी लेने का वापस वही तरीका, 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के 3 टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म आपका हो जाएगा ए, ये वाला टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा ए प्लस डी, आपके 3 टर्म्स हो गए। ये आपका हो गया फर्स्ट डिजिट, ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड डिजिट, और ये आपका हो गया थर्ड डिजिट। तो ये आपका 3 डिजिट नंबर हो गया। इससे फायदा क्या होगा, जैसे आप इन तीनों को ऐड करोगे आपका डी एलिमिनेट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हम क्यों करते हैं, ताकि कोई ना कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाता है। ये 3 डिजिट नंबर, जिसका फर्स्ट डिजिट ये रहा, सेकंड डिजिट ये रहा, थर्ड डिजिट ये रहा, बोला क्या क्या है, सम ऑफ द डिजिट इज 15, सम ऑफ द डिजिट इज 15। तो इनका अगर आप सम करोगे तो सम करने पे डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 3a इक्वल टू 15। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब आपके पास a पता चल गया। अब अगला कॉन्सेप्ट, अब डी निकालने के लिए एक और कंडीशन क्या गिवन है, अब अगली कंडीशन को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो क्या बोला गया, रिवर्स नंबर इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर से 594 कम है, तो ओरिजिनल नंबर माइनस 594, सेकेंड रिलेशन यहां से आएगा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे, ये भी देखो। सबसे पहले अगर मान लो मुझे ओरिजिनल नंबर पता करना है, ओरिजिनल नंबर से मान लो आपको अगर कोई भी नंबर दिया 154, तो 154 को पता करने का लिखने का एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपका यूनिट प्लेस है, आपका टेंस प्लेस है, आपका 100 प्लेस है। तो इसको अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे तो तरीका क्या हो जाएगा, 1 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 4 into 1। तो ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म में हो गया। किसी भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में इसको ऐड करोगे आपके पास यही आएगा। सेम में आपका फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 1 into a प्लस डी, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये ओरिजिनल नंबर आ जाएगा माइनस 594। ए मुझे यहाँ पे पता है, ए की वैल्यू में पुट अप करूंगा। और रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, तो जो फर्स्ट पोजीशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को तो एंटर में तो उसको वो 10 ही रहेगा, और जो लास्ट पोजीशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट अप करोगे, आपके पास डी आ जाएगा, ए पता है तो डी आ जाएगा, ठीक है। ए ऊपर की वैल्यू यहाँ पे नीचे पुट अप करेंगे, 2 ही अननोन थे ए और डी, तो अपने पास डी आ जाएगा। अब जो भी नंबर ए पता है डी पता है, तो आपके पास फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, वैल्यू पुट अप करोगे, फिर सेकंड डिजिट आ जाएगा, फिर थर्ड डिजिट आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो यही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग डिजिट में क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा, है ना, डिजिट्स क्या हो जाएगी उल्टी, और ओरिजिनल नंबर में ऐसा होगा। और कभी भी किसी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में अगर लिखना है तो उसकी यूनिट पोजीशन को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, डी आपका -3 आया, तो डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 5,
तो आपका फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, a माइनस डी, 5 माइनस 3 दैट इज, सॉरी फर्स्ट डिजिट क्या था, सॉरी a प्लस डी, फर्स्ट डिजिट क्या था, a प्लस डी। आपको क्या पूछा था, रिवर्स, अच्छा इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने इस तरह से लिया है, उन्होंने पहले ही वाला नंबर ले लिया, क्लियर है। तो आपको a पता चल गया, d पता चल गया, यहाँ पे अगर उसकी कैलकुलेशन करोगे अपने हिसाब से, तो यहाँ पे आपके पास जो कैलकुलेशन करोगे उसमें d पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं जहां पे हमें ये बोला जाता है कि 3 टर्म्स एपी में लेनी है या 5 टर्म एपी में लेनी है, तो जनरली अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे 3 टर्म या 5 टर्म का, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ओके, चलो यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो एनीवन। ये एपी लगभग कंप्लीट हो गया। तो एपी में जनरली जेई इसी के अराउंड आपके पास क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, युवराज, आदित्य, साहिल एंड लोकोजीत, यहां तक क्लियर है या फिर कुछ डाउट है? क्लियर है, ओके। आदित्य क्लियर है, ठीक है। लोकोजीत एंड गुरमंत एंड साहिल क्लियर है सर, समझ आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ओके नो सर। ठीक है। तो देखो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एपी का। अगला जो कॉन्सेप्ट, देखो ये चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ चुके, आप 12th में आ गए, ठीक है, इसलिए अपन ज्यादा टाइम नहीं देंगे किसी चीज को। मुझे इस चैप्टर को कोशिश करना है आज ही मैक्सिमम फिनिश हो जाए। 50% कोशिश करेंगे आज निपटाएंगे, 50% नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, 2 लेक्चर में पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जीपी का। तो जैसे एपी में हर टर्म में डी ऐड करते आगे आगे बढ़ते हैं, जीपी में भी क्या होता है, हर टर्म में आर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म अगर ए है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, अगला टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, अगला टर्म हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये होता है आपका जीपी। यहाँ पे जो आर होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। अगेन ए इज माय फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर मुझे कोई से पूछा भाई 7 टर्म बताओ, तो 7 टर्म क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 6। कोई पूछेगा 15 टर्म बताओ, तो 15 टर्म क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 14। इस तरह से मैं कोई भी टर्म जनरल पता कर सकता हूँ, क्लियर है। नो टर्म ऑफ द जीपी कैन बी जीरो ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कोई भी टर्म जीरो हो गई, फिर आप जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आगे की टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब उसका कॉमन रेशियो आर कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगी तो फिर तो इनफाइनाइट कॉमन रेशियो हो जाएगा, तो वो तो एक प्रॉपर जीपी नहीं रहेगा। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो जनरल टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन। इज इट क्लियर, ठीक है। और इसी में सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला बनता है, एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला भी आपको ध्यान होगा, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी में अगर एन टर्म्स है तो उन एन टर्म्स का जो सम हो जाएगा ये हो जाएगा ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एंड सेकंड हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, अगर इनफाइनाइट टर्म से, अच्छा इनफाइनाइट सीरीज तभी बनेगी जब कॉमन रेशियो मेरा -1 से 1 के बीच में आएगा, मतलब डेसिमल में होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हो गया या -1 से छोटा हो गया, तो कभी भी आपके पास जो ये बनेगी सीरीज वो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इनफाइनाइट सीरीज का आंसर तभी पॉसिबल है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लगे। तो अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा और मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला बनेगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। चलो, अच्छा टर्म्स एपी और जीपी में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो ये बहुत बार काम आएगा आपको, एबीसी 3 नंबर है, एनी नंबर, कोई भी नंबर है एबीसी, एनी कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। अगर ये 3 नंबर बोला गया एपी में है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन आ जाएगा, अगर ये 3 नंबर एपी में तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। इनमें आपस में क्या रिलेशन आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। दूसरा बोला गया अगर ये नंबर जीपी में है, तो अगर जीपी में है तो रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो बी बाय ए का रेशियो सी बाय ए बी का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो वहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। कैसे आता है, अगर ये 3 नंबर जीपी में तो कॉमन रेशियो तो सेम होगा, तो बी बाय ए का वैल्यू और सी बाय बी का वैल्यू क्या होगा, सेम। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर 3 नंबर एपी में है, एबीसी आर इन द एपी, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और 3 नंबर अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बेसिक फंडामेंटल पे दिए हुए। अगेन देखो यहाँ पे सेम चीज है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पे चीजें गिवन है, आप दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालो। जेई मेंस में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। In an increasing GP, the sum of second term and the sixth term is this. The product of third term and fifth term is this. Find the value of this. तो again 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल,
दोनों इक्वेशन से क्या निकालोगे, ए और आर, ए और आर पता चल जाएगा, फिर जो भी वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा। जैसा एपी में पूछा गया था सेम वे में जीपी में आपको दो इक्वेशन दे देंगे, अननोन वहां पे ए और डी था, यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, ए और आर, फिर आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, क्योंकि इनमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा एपी के की पॉइंट है, जीपी में भी सेम। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो किसी, या फिर पावर अगर के चढ़ा देते हो, तो नंबर किस में रहेंगे, जीपी में। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप ऐड करोगे हर टर्म में, अगर के ऐड करते हो, तो अब ये जो सीरीज बनेगी, अब ये जरूरी नहीं जीपी में रहेगा, दिस नॉट अ जीपी, जनरली जीपी में नहीं रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप हर टर्म में के मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नई सीक्वेंस जो बनेगी वो अगेन जीपी में रहेगी। सबकी पावर भी के कर दोगे तो अभी भी सीक्वेंस किस में रहेगी, जीपी में रहेगी। ठीक है, चलो, जैसा कि वहां पे मैंने बताया था, 3 टर्म्स अगर जीपी में लेना है, तो 3 टर्म्स में अगर जीपी में लेना है, तो मिडिल टर्म को अगेन ए मानो, आगे वाली टर्म निकालने के लिए आर मल्टीप्लाई करो, पीछे वाली टर्म निकालने के लिए आर से डिवाइड करो, तो 3 टर्म्स हो गई जीपी की। 5 टर्म्स लेना है, ऑड टर्म्स लेना है, तो अगेन मिडिल टर्म को ए मानो, आगे निकालने के लिए आर मल्टीप्लाई, पीछे निकालने के लिए आर डिवाइड, आगे अगेन ए आर स्क्वायर, पीछे कितना हो जाएगा, ए आर रेस टू ए बाय आर। तो ये 5 टर्म हो गई जीपी की। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब देखो, ये ऑड टर्म्स के लिए, जब भी इवन टर्म्स आती है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन लेनी हो, उस केस में मिडिल टर्म नहीं आएगा, उस केस में दोनों तरफ क्या होगी, बराबर टर्म्स होते हैं। इवन टर्म्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इवन टर्म्स में आपकी मिडिल की 2 टर्म आपको अज्यूम करनी, जैसे ऑड टर्म्स में तो एक मिडिल टर्म होगा, तो हमेशा मिडिल टर्म अपने ए अज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, तो आपको 2 मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म होगी आपकी ए माइनस डी, दूसरी मिडिल टर्म होगी ए प्लस डी, तो ये आपकी दोनों मिडिल टर्म। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से यहाँ आने में 2d ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना ऐड हो रहा है, 2d। तो अब यहाँ से आगे जाने में वापस 2d ऐड करोगे, तो अगली टर्म कितनी हो जाएगी, a प्लस 3d। इधर से इधर पीछे जाने में 2d सब्सट्रैक्ट करोगे, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, a माइनस 3d। तो 4 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे 4 टर्म्स अगर लेनी है जीपी में, तो 4 टर्म आप इस तरह से ले सकते। इसका फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। ठीक है, इसी पे बेस एक क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। देखो वापस से सम पूछा है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको वापस वही करना है। 3 टर्म जीपी में, तो 3 टर्म जीपी में क्या लोगे, ए बाई आर और ए आर। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, प्रोडक्ट करने पे फायदा होगा। प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 1, इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, तो जैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1, ए क्यूब अगर 1 है तो ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया पहले रिलेशन से। अब बोला गया है इनका सम 39/10 है, इनका अगर आप सम करोगे, अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप रख दोगे 1, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ए की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो आर आ जाएगा। ए पता है, आर पता है, आप कुछ भी पूछेंगे निकाल देंगे। ठीक है, अगेन ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको जनरली याद रखना है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इनफाइनाइट होगी तो भी फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स के भी फॉर्मूला अप्लाई कर। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन थे 9 + 99 + 999। तो इसको करने का एक ही तरीका होता है, सबसे पहले आप इसको में क्या बना दो, 9 क्रिएट करो। जो भी क्वेश्चन आए क्या क्रिएट करोगे, 9 + 99 + 88। तो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो इसमें से 8 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। अब मुझे 99 क्रिएट करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, हर टर्म को 9 को लिखने का तरीका एक और क्या हो जाएगा, 10 - 1। 99 को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, 100 - 1। 999 को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, 1000 - 1। इससे फायदा क्या हुआ, मेरी 2 तरह की जो सीरीज बनी है उनका सम आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे 10 + 100 + 1000, ये एक जीपी है जिसका एन टर्म का सम हम निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, -1 + 1 + 1, ये भी क्या है, एन टाइम्स है। अब इन दोनों का सम निकाल के आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 99 और 9 इस तरह की टर्म आप क्रिएट करो, आंसर आ जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी एपी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मुझे एचपी मिल जाएगा। किसी भी एपी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, एचपी। तो अगर मान लो मैं अगर बोलता हूँ A1 A2 A3, अगर ये टर्म्स an, अगर ये टर्म्स बोला गया एचपी में है, इसमें है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका कंसेप्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, इनका जो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन अप टिल 1/an। ये जो रिवर्स सीक्वेंस, हर टर्म को मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस मेरी एपी में हो जाएगी। और एपी की कैलकुलेशन करना मुझे आती है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सम, जो भी पूछा निकाल सकता हूं। तो कभी भी अगर एचपी का क्वेश्चन आता है उसका आप एपी में कन्वर्ट कर दो, और एपी से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन आपको पता है वो आप अप्लाई कर दो, बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना। और एक और चीज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी का कोई फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, आपको सिर्फ जनरल टर्म का फॉर्मूला डिफाइन है, सम ऑफ एन टर्म्स का कोई फॉर्मूला डिफाइन।
तो एचपी में ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते भी नहीं है, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना, अगर आएगा तो उसको एपी में कन्वर्ट करो और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया। ठीक है, तो देखो आज का जो टारगेट था मेरा बेसिकली कि आपको मैं एपी, जीपी और एचपी इन तीनों के बारे में ब्रीफ करके इंट्रोड्यूस करूं। तो अपना ये यहाँ का ये कंसेप्ट कवर हो गया। आपका अब काम ये रहेगा कि आप ये जो आज के क्वेश्चन है इनमें जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिए उनको आप अच्छे से ट्राई कर लो, और जेई के पिछले साल के और पीवाईक्यू आप अगर आपके पास कोई बुक हो या फिर नेट पे हो तो पिछले के 5-10 साल के पीवाईक्यू जितने आप ट्राई कर सकते हो इन टॉपिक पे, एपी, जीपी और एचपी पे आप ट्राई कर लो। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें हम एएम, जीएम और एचएम और मेथड ऑफ डिफरेंस इस पे अपना टारगेट रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स आना ही है, और यहाँ पे आज जो अपन ने पढ़ा उससे भी एक क्वेश्चन आना है। आपने देखा था कि एपीओ, जीपीओ इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट बेस है। ठीक है, उसमें मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, उन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ सबको आज का सेशन? आदित्य, साहिल, युवराज, गुरमीत एंड लोकोजीत, आप थम्स अप करके बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख दो। आदित्य क्लियर, ओके। युवराज, साहिल क्लियर, गुरमीत क्लियर, ओके। लोकोजीत क्लियर, ओके। ओके साहिल, ओके गुरमीत, ओके देन थैंक यू एवरीवन। क्विक रिकैप हमने कर लिया इस टॉपिक का। ऑलरेडी आपको आई थिंक ये टॉपिक आता होगा, मैं इसके नोट्स अभी भेज रहा हूँ, तो जो जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उनको आप वापस से रिट्राई कर लेना। एंड सेकेंडली एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड जो जो भी पीवाईक्यू है एएम, जीएम को छोड़ के उनको आप एक बार रिट्राई कर लेना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका आज ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर?